Good morning, students. And today we will discuss the next topic, that is single transferable vote system. What we are discussing the proportional representation system of elections. In proportional representation system, we have discussed the list system. अब तक हमने list system को जो है डिस्कस किया था, टू फॉर्म ऑफ लिस्ट सिस्टम. फर्स्ट फॉर्म में क्या था, एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कि पूरा जो कंट्री है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रहता है. एंड द सेकेंड वन इज वेयर एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट constituencies. So this is the second method of PR system, proportional representation system. This is known as single transferable vote system. As we have discussed in our last session, that what system we are using in our country, we are using first past the post system, FPTP. First past the post system we are using in our country for the elections of Lok Sabha and various state legislative assemblies. Clear? But we are also using single transferable vote system method of PR system in the election of president, vice president and member of Rajya Sabha. As we have discussed in our last session, that we are also using one method of PR system, that is single transferable vote system in the elections of president, vice president and member of Rajya Sabha. So in today's session we will discuss that in what form and how we use this type of method in our election system. हमारे इलेक्शन सिस्टम में हम इस मेथड का कैसे यूज करते हैं, हम उसको डिटेल में आज जो है डिस्कस करेंगे विद ए सिंपल एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप तक वो पहुंच सके. सो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं राज्यसभा का. हम राज्यसभा का एग्जाम्पल लेके चलते हैं बिकॉज we are using the same method for the election of president, vice president and member of Rajya Sabha. तो आज हम राज्य सभा से स्टार्ट करेंगे. We start with the राज्य सभा and we will discuss about the राज्य सभा, उसके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं. We will discuss in today's session. So we are living in Haryana, so we take the example of our own state. हम अपने ही स्टेट के एग्जाम्पल से जो है स्टार्ट करते हैं. हरियाणा. In the last session I have told you that how many parliament seats are in Haryana. I am talking about the parliament seats. So parliament seats, we have 15 parliament seats in Haryana. Out of these 15 parliament seats, 10 in Lok Sabha and 5 in Rajya Sabha. 10 किसमें है? लोक सभा में, और 5 किसमें है? राज्यसभा में. Because we know we have two houses of parliament. One is Lok Sabha, another one is Rajya Sabha, the upper house and the lower house. Clear? So 10 we have in Lok Sabha and 5 we have in Rajya Sabha. Clear? This is the picture of Haryana. So in that case we can say that how many members or how many candidates Haryana sent to the parliament. So your answer, if there is parliament, your answer is 15. And how many candidates Haryana sent to the Lok Sabha? 10. And to the Rajya Sabha? 5. Is this clear? So Haryana से 15 जाते हैं, 5 from Lok Sabha and 10 from Lok Sabha and 5 from Rajya Sabha. Now ये जो 10 हैं जो लोकसभा में जाते हैं, लोअर हाउस में जाते हैं पार्लियामेंट के, हु इलेक्ट दीज 10 मेंबर्स और 10 कैंडिडेट्स और 10 एमपीज, बिकॉज ये पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको हम क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दीज 10 कैंडिडेट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हरियाणा. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हरियाणा. इनको कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्टली जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके बेसिस के ऊपर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं हरियाणा में इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन दीज 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे इलेक्ट एंड सेंड देम डायरेक्टली टू द लोकसभा. क्लियर है? ऑन किस बेस पे करते हैं?
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। FP-TP सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम इन 10 को चूज करके कहां भेजते हैं, पार्लियामेंट में। नाउ वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, बिकॉज हाउ मेनी सीट्स वी हैव इन राज्यसभा? 5। हरियाणा हैज 5 राज्यसभा सीट्स। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज वी ऑल नो दैट राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज एवरी लोकसभा जो है वो 5 ईयर के बाद क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। बट राज्यसभा इज द ओनली हाउस दैट इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट हाउस, जो कि कभी भी जो है डिसॉल्व नहीं होता। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा और यहां पर हम जान लेते हैं, थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप लोगों को है भी, आप जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में इस बारे में पढ़ के भी आए हैं। लाइक 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर। जो राज्यसभा है, सबसे पहली बात तो उसके मेंबर्स का जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो कितनी ईयर्स की है? 6 ईयर्स की है। जैसे लोकसभा की कितनी है? 5 ईयर है। राज्यसभा में क्या है? 6 ईयर्स है। एक कैंडिडेट जो राज्यसभा में गया है वो कितने दिन तक रहेगा राज्यसभा में? 6 ईयर्स तक रहेगा। बट इसमें एक और प्रोविजन है, वी हैव वन मोर प्रोविजन दैट 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल के बाद जो है राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है ऑटोमेटिकली रिटायर होते रहे। एक सिस्टम ऐसा है, मींस हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं राज्यसभा के जिनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। 6 इयर्स का टेन्योर जो है उनका कंप्लीट हो जाता है। दैट्स व्हाई 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं हरियाणा। हाउ मेनी सीट्स वी हैव? टोटल सीट्स 5। अब इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए आपने कभी सुना है कि राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है कंट्री में? नहीं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन है, आफ्टर एवरी 5 ईयर हम जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट राज्यसभा का इलेक्शन एक साथ नहीं होता लाइक लोकसभा। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स वैकेंट हुई हैं, इस टाइप से उसका इलेक्शन हम अरेंज करते हैं। सपोज इन हरियाणा वी हैव 5 सीट्स, but at the point of time, suppose grow, only 2 vacancies are in Haryana. Only 2 vacancies are in Haryana. It means the 2 member from Haryana completed their term of 6 years. उन्होंने अपने 6 साल की टर्म कंप्लीट कर ली है और 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो 2 मेंबर जो है वो रिटायर हो गए हरियाणा से। तो कितनी वैकेंसी हुई? 2 वैकेंसी हैं अब हरियाणा में, मीन्स 2 कैंडिडेट्स, क्योंकि 5 हैं उसको पूरा करना है। 2 रिटायर हो गए, 3 बच गए। अब नए न्यू 2 कैंडिडेट्स को हमें इलेक्ट करके जो है कहां भेजना है? राज्यसभा में। क्लियर? तो अब हम जब बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की, तो उसमें हम बात करेंगे कोटा सिस्टम की। कि कोटा क्या है? व्हाट इज दैट कोटा? कोटा इज द मिनिमम वोट रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन। कोटा क्या है? मिनिमम वोट रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन को विन करने के लिए जो मिनिमम वोट चाहिए एक कैंडिडेट को, दैट इज कोटा। सो अब हर एक स्टेट का डिफरेंट कोटा है। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इन देयर विधानसभा। उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जितनी सीट्स हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। हर एक स्टेट का अलग अलग कोटा बनेगा। बट वी आर डिस्कसिंग हियर हरियाणा और ऑन स्टेट, तो हम हरियाणा की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, who elect Lok Sabha members? The people directly elect the Lok Sabha members. But in case of Rajya Sabha, who are the voters? What I'm talking, who are the voters? Means कौन है जो वोट डालेंगे इन 2 कैंडिडेट्स के लिए राज्यसभा के? तो वो डालेंगे हमारे 90 MLA, member of legislative assembly. As we all know that in our state Haryana, how many seats are there in legislative assembly? 90 seats हैं legislative assembly. ये वो 90 हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और यही जो है आप वोट डालेंगे किसके इलेक्शन में? राज्यसभा के इलेक्शन में, फॉर दीज 2 वैकेंसीज। सो कोटा यहां क्या बनता है? नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ वोट्स बोल सकते हैं हम इनको, नंबर ऑफ वोट्स इन हरियाणा। तो हरियाणा में नंबर ऑफ वोट कितने हुए राज्यसभा के लिए? 90 प्लस कितनी वैकेंसी हैं? 2 + 1 ब्रैकेट +1। सो हमें 2 चीजें ध्यान रखना है, कितनी वैकेंसी हैं और कितनी टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। हम बात करेंगे सिर्फ हरियाणा की। तो हरियाणा में बात करें, हाउ मेनी वोट्स वी हैव?
90 votes because how many strength we have, how much strength we have in state legislative assembly of हरियाणा 90. So वोट भी कितने हो गए 90. अब ये जो 90 एमएलए हैं ये वोट करेंगे किन के लिए, इन दो के लिए. तो सिंपल फॉर्मूला 90 वैकेंसी कितनी है 2 + 1 एंड +1. सो कोटा हमारा आ गया 31. कोटा कितना आ गया 31. It means simple, the candidate who secured the 31 votes will move to the Rajya Sabha from Haryana. अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सपोज 5 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन. 2 वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट ने अपना नाम दिया. 5 कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर 2 वैकेंसी ऑफ राज्यसभा. अब हम इस इलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे कि इन 5 में से कौन से 2 जो है राज्यसभा में जाएंगे. सबसे पहले हम थोड़ा सा एफपीटीपी पे बात कर लेते हैं. यहाँ पर एफपीटीपी पे अगर मैं बात करता हूं, एफपीटीपी में सिंपल है एक ईवीएम जिसको हम ईवीएम बोलते हैं. इस टाइप से एक जो है मशीन हम जिसको बोल सकते हैं ईवीएम वो होता है. इसमें डिफरेंट कैंडिडेट्स, उनकी पार्टी का नेम प्लस सिंबल और पार्टी नेम, जिसको भी हमें वोट करना है हम किसी एक पर क्लिक करते हैं, हमारा वोट कास्ट हो जाता है इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट. But here in the election of Rajya Sabha we have a different method to elect the candidate, and what is that method we will discuss here. So how many candidates are contesting the election? 5 candidates are contesting the election for 2 vacancies from Haryana. Suppose for candidate A, candidate B, C, D and E. Clear? कितनी वोट्स हैं 90. कितने लोग वोट कर रहे हैं 90% जो है वो 90 जो एमएलए हैं वो वोट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक बैलेट पेपर, इसको हम क्या बोलेंगे बैलेट पेपर. इस टाइप का एक बैलेट पेपर वो जो है हम इन 90 कैंडिडेट्स को डिलीवर कर देंगे. दिस काइंड ऑफ बैलेट पेपर वी विल डिलीवर टू द 90 कैंडिडेट. अब देखिए 90 जो हैं, सॉरी 90 वोटर्स, इस बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट्स के नेम लिखे होंगे A, B, C, D and E. 5 कैंडिडेट. और ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, दीज आर द प्रेफरेंसेस. दीज आर द प्रेफरेंसेस. अब मैं बताता हूं कैसे होएगा. और ये इस टाइप का एक बैलेट पेपर वी विल डिलीवर टू द 90 वोटर्स. वो 90 वोटर्स के पास चला गया. अब वो अपने अपने वोट कास्ट करेंगे. सपोज मैं भी इन 90 में से एक हूं, सपोज कर रहा हूं नहीं मान रहा हूं, मैं भी इन 90 में से एक हूं. तो मेरे पास बैलेट पेपर आया, तो अब मुझे वोट करना है. तो मैं इस बैलेट पेपर को देखूंगा, मुझे अपनी प्रेफरेंस देनी है. यहां मैं एक को वोट नहीं करूंगा, मैं 5 को वोट करूंगा, बट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस. अब मेरे पास आया, मुझे लगता है कि कैंडिडेट ए जो है वो सुटेबल कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए इज ए सुटेबल कैंडिडेट. तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे दिया, ए को. सिंपल. बी को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, सी को मैंने जो है थर्ड दे दिया, डी को फोर्थ और ई को फिफ्थ प्रेफरेंस. तो इस तरह से मैंने वोट कास्ट कर दिया. ये एक एग्जांपल है. मैं फर्स्ट प्रेफरेंस बी को भी दे सकता हूं और लास्ट प्रेफरेंस जो है मैं ए को भी दे सकता हूं. क्लियर. तो इस तरह से 90 के 90 जो है वो अपनी वोट को कास्ट कर देंगे. अब वोटिंग हो गई इलेक्शन की. अब क्या करेंगे हम, सपोज ए है, ए को कितनी वोट्स मिले 20 क्या है 20 फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिले ए को. अब हम सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंसेस काउंट करेंगे. अब हम सभी 90 जो बैलेट पेपर है उसको ओपन करते जाएंगे और उसमें सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे. हम देखेंगे ए को 90 में से कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं. सपोज ए को 90 में से 20 फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं. क्लियर. अब बी को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं, जो कि मेरा कैंडिडेट नहीं था क्योंकि मैंने तो इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया था, बट बी गॉट 31 प्रेफरेंसेस, फर्स्ट प्रेफरेंसेस. सी को 10, डी को 10 और ई को 19 मिले. तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 90 हो गया, 90 वोट कंप्लीट हो गए. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बी हु सिक्योर्ड द कोटा. बी ने क्या कर लिया, कोटा को सिक्योर कर लिया. बी सिक्योर द कोटा. तो यहां से बी तो डायरेक्टली जो है कहां चला गया, राज्यसभा में अपने आप ही चला गया, बिकॉज बी गॉट द मिनिमम वोट रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. बी ने उतने वोट जो है सिक्योर कर लिए जितने की उसे राज्यसभा में जाने के लिए चाहिए. ठीक है. अब एक कैंडिडेट तो चला गया, अब हमें क्या चाहिए, एक और कैंडिडेट चाहिए, बिकॉज वी हैव 2 वैकेंसीज. अब सेकंड कैंडिडेट की हम बात करते हैं. अब हम क्या करेंगे, सिंपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बी जो है यहां से चला गया. अब
जिनको सबसे कम वोट मिले हैं, अब हम उनको देखेंगे कोटा के बाद जिनको सबसे कम वोट मिले हैं इन 5 में, तो हमें क्या मिलता है, सी और डी मिल गया हमें। सी और डी 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस, बस 10-10 लोगों ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। सो दे हैव द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, सी एंड डी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ सी और डी के बैलेट पेपर को उठाएंगे, सी और डी। अब हम क्या करेंगे, जो सी और डी के में अब जिस इनमें 10 इनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिले ना, उन 10 बैलेट पेपर्स को उठा लेंगे जिसमें इनको 10 जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। अब सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया, 10 ने, तो उन 10 को हमने अलग कर दिया जिसमें इनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले थे। अब हम उन 10 में ये देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस जो है सी और डी के दोनों के सेकंड प्रेफरेंस जो है वो किस किस को मिला है। अब हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। अब इनके सपोज करो सी और डी को मिलाकर अगर हम उनके 10 बैलेट पेपर्स को देखें तो ए को जो है, ए गोट 11 सेकंड प्रेफरेंस, इनके बैलेट पेपर में जो है सेकंड प्रेफरेंस ए को कितने मिले, 11, तो वो हम ए की 20 वोट्स में जो है ऐड कर देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो गया। फ्रॉम हियर वी गॉट द 31। सो ए ऑल्सो सिक्योर द मिनिमम कोटा फॉर द राज्यसभा एंड बी ऑलरेडी जो है वो राज्यसभा में जा चुके हैं और अब हमारे जो है यहां से सेकंड कैंडिडेट जो होंगे वो कौन होंगे, ए होंगे जो कि राज्यसभा में चले जाएंगे। जस्ट ट्राई टू फोकस हियर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए कैसे जाएगा। सी और डी के टोटल बैलेट पेपर कितने हो गए, 20 हो गए। कौन से 20, वो कंसीडर करेंगे जिनमें इनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी। तो सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दी थी, 10। इट मींस 10 ऐसे बैलेट पेपर थे जहां पर सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हुई थी और 10 ऐसे थे जहां पे डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हुई थी। तो हमने इन 20 को अलग कर दिया, 20 बैलेट पेपर्स को अलग कर दिया। अब हम इन बैलेट पेपर्स को फिर खोलेंगे और हम देखेंगे कि इनमें सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है। सपोज करो सी और डी को मिला के ए को सेकंड प्रेफरेंस 11 मिले तो वो 31 हो गया, उसने अपना कोटा अचीव कर लिया एंड नाउ ए विल मूव टू द राज्यसभा। इज इट क्लियर। सपोज करो अगर सेकंड राउंड में भी हमारा कोटा नहीं आता, एक बार मान के चल लेते हैं, तो हम क्या करते, देन व्हाट विल वी डू, विल डू सी और डी के जो बैलेट पेपर्स थे उनकी थर्ड प्रेफरेंस को काउंट करके यहां पर हम ऐड कर देते और वी विल गेट आवर सेकंड कैंडिडेट। सो सेम प्रोसीजर जो है, द सेम प्रोसीजर वी अडॉप्ट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री। सो this is all about the single transferable vote system, students. This is all for today. Please watch the video carefully and take your doubts. Thank you very much.